ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो सब तो पहला ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ कि गैल्वेनोमीटर की है और ये किवें काम करता है। So it is a very sensitive instrument which is used to detect and measure very small currents in the electrical circuit. ये करंट मिली एम्पीयर या माइक्रो एम्पीयर ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਮੈਗਨੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो depending upon this we can classify galvanometer into two types. The first type is moving coil and the second type is moving magnet. तो नाम तो ये क्लियर है कि पहली टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ coil मूव करती है और magnet rest ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है, और दूसरी टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ magnet मूव करता है पर coil rest ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ moving coil galvanometer। तो moving coil galvanometer ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, suspended type ਤੇ pivoted type। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਇਓਟਿਡ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਈਪ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਇਓਟਿਡ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो इसलिए ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਇਓਟਿਡ ਟਾਈਪ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। तो ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਪਾਇਓਟਿਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਸ ਸ਼ੂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਪੋਲਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੇਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਹੇਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈ I ਉਹ ਥੀਟਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो अगर ਅਸੀਂ करंट I ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੇਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੇਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਟਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ 20, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜੋ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ G, ਔਰ IG ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੰਟ IG ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ IG ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਔਰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਐਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੀ EMF E ਹੈ ਔਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ I ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਮਸ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E/R। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें ਅਸੀਂ सर्कल ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮੀਟਰ 'ਚ। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੰਬਰ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ I ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तो ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਜਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। तो मान लो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
तो अगला क्वेश्चन ये आया कि हुण गलवैनोमीटर नूं सीरीज़ 'च लगाइए या पैरेलल लगाइए। तो करंट इलैक्ट्रिसिटी यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो इसे कंसैप्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ I ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸੇਮ EMF E ਹੈ। तो ओम्स लॉ लगा के ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰੰਟ I डैश ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो I डैश किहदे बराबर आएगा अपने को E अपॉन R प्लस G। ये R प्लस G क्यों आया नीचे? क्योंकि ऊपर दो रेजिस्टेंसेस जो सीगियां R और G ਇੱਥੇ ਇਸ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ I और I डैश ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ I डैश ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ I ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। तो इस तरीके राही सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ कनैक्ट ਕੀਤਾ ਹੈ तो जो करंट ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। तो फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜੋ ਮੇਜਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਰਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तो ਐਰਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ I डैश इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस G ਨੂੰ एनालाइज करांगे। तो ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ I डैश ਦੀ ਵੈਲਿਊ I ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। तो I डैश ਦੀ ਵੈਲਿਊ I ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਅਗਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ G ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ G ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ G ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ G ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ? ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ अगर 0 नहीं हो सकती तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर इन्नी घटा दी जाए कि I डैश जो है उसकी वैल्यू I के बराबर आ जाए। तो इसे कंसैप्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो उस हैवी करंट के फ्लो होने नाल गलवैनोमीटर डैमेज हो जाता है। देखो डैमेज किस तरह हो जाता है कि हीटिंग इफेक्ट्स करके जो कॉयल है गलवैनोमीटर की वो बर्न हो जाती है और कई बारी जो गलवैनोमीटर का पॉइंटर है वो स्केल तो बाहर चला जाता है और ब्रेक भी हो जाता है। तो ये दो डिफिकल्टीज जो असी हुणे देखिया इन्हां दोनों नूं रिमूव करन लई असी गलवैनोमीटर दे विच कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहांगे। इन मॉडिफिकेशन नूं ही असी ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਿਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। तो इस तरीके राही ये जो पूरा सैक्शन बन के आएगा जिन्होंने डॉटेड करके दिखाया गया है इसनों असी मॉडिफाइड गलवैनोमीटर कहांगे या इसनों असी एमीटर भी कह सकते हैं। तो अजे असी सिर्फ इनू एमीटर का नाम दिता है, इनू असी ये चैक करांगे सर्किट च लगा के कि ये परफेक्टली काम करता है कि नहीं करता। तो सब तो पहला असी इस मॉडिफाइड गलवैनोमीटर की रेजिस्टेंस निकालांगे। तो तुसी देख सकते हो इत्थे दो रेजिस्टेंसिस पैरेलल च लगी हुई ने G एंड S और S जो है G के कंपैरेटिवली काफ़ी घट वैल्यू है। तो असी एक कंसैप्ट भी पहला पढ़िया हुआ है कि दो रेजिस्टेंसिस अगर पैरेलल लगियां होन तो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है तो दोनों पैरेलल च कनैक्ट की हुई रेजिस्टेंस की जो लीस्ट वैल्यू होंगी है उस तो भी घट आर इक्वलेंट की वैल्यू मिलती है। तो असी इत्थे इस फॉर्मूले नूं यूज करते हुए आर इक्वलेंट इज इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S इस एमीटर की इक्वलेंट रेजिस्टेंस जी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इत्थे असी चैक करने लिए कोई वैल्यू भी दे सकते हैं कि मान लो गलवैनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50 ओम और S की वैल्यू है 1 ओम। तो जो असी मल्टीप्लाई करांगे तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 50 और नीचे ऐड करांगे तो बन जाएगी 51। तो डिवाइड करके असी देखांगे कि जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली वो 0.9 के करीब आ जाती है। तो हुण तुसी देख सकते हो कि जो शंट इत्थे लगाई सी उहदी रेजिस्टेंस 1 ओम सी, तो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आई उस तो भी घट आई 0.9। तो इस तरीके राही अगर असी
ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜੋ ਸਰਕਟ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰੰਟ आई ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ 1 एम्पियर है। तो ये जो एक्सटेंडेड वायर इत्थे दिखाई दे रही ने ये शो कर रही ने कि किसी इलैक्ट्रिकल सर्किट का ही पार्ट है और इस एमीटर नूं उस सर्किट दे विच असीं सीरीज च जोड़िया होया है। तो हुण तुसीं ध्यान नाल देखना कि जदों ये करंट आई इस एमीटर च एंटर करेगा तो किस तरीके राहीं फ्लो करेगा। तो आई अगर एक्स पॉइंट तक जदों पहुंचेगा देखो ब्रांचिंग के कारण एक्स के उपर आई दो पार्ट से डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट जो है आई जी एक गलवैनोमीटर च फ्लो कर जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है जिन्होंने असी आई माइनस आई जी या उन्होंने असी इत्थे आई एस करके लिखा है ये एस दे विचों पास कर जाएगा क्योंकि सानू पता है इत्थे भी एस दी वैल्यू जी दे कंपैरेटिवली बहुत घट है। तो जो मेजर पार्ट है आई दा टोटल करंट दा मेजर पार्ट जिहड़ा है वो एस दे थ्रू फ्लो कर जाता है और वाई पॉइंट ते आके दोनों करंट फिर ऐड हो जाएंगे और ऐड होके आउटर सर्किट दे विच फिर टोटल करंट जो है आई ही फ्लो कर जाएगा। तो हुण इस गलवैनोमीटर दी जो मॉडिफाइड गलवैनोमीटर है इहदी स्केल दे उपर जो सानू रीडिंग दिखाई देगी उस रीडिंग नूं असीं पढ़ के देखते हैं तो रीडिंग कितनी होएगी 1 एम्पीयर। क्योंकि असीं इत्थे गलवैनोमीटर तो एमीटर बना रहे हाँ असीं मेकर हाँ तो असीं इत्थे इहदी कैलिब्रेशन अजे करनी है। तो ये पॉइंटर जो दिखाया गया है ये फुल स्केल डिफ्लैक्शन वाला पॉइंटर है तो इत्थे असीं मार्क लगावांगे 1 एम्पीयर। तो इस तरीके नाल इस गलवैनोमीटर की जो रेंज है हुण वो कितनी हो जाएगी 0 to 1 एम्पीयर। तो जो अपनी रिजल्ट असीं इत्थे मेजर किया कि आउटर सर्किट भी करंट आई जा रहा सीगा और गलवैनोमीटर की स्केल तो भी असीं जो करंट मेजर किया वो 1 एम्पीयर है। तो इस तरीके राही जो एरर आ रही सी रिजल्ट जो पहला वो इत्थे असीं उसनूं सॉल्व कर लिया उस प्रॉब्लम नूं। हुण असीं सैकेंड प्रॉब्लम की गल करते हैं। असीं क्या सीगा कि अगर किसी सर्किट दे विच हैवी करंट अगर फ्लो करता है तो उत्थे अगर असीं डायरैक्टली सीरीज़ दे विच गलवैनोमीटर नूं अटैच करदे सीगे तो हैवी करंट करके गलवैनोमीटर डैमेज हो जाता सीगा। तो उस प्रॉब्लम में इत्थे चैक कर लेने इस सर्किट के अंदर भी जिथे कि असीं मॉडिफाइड गलवैनोमीटर नूं लगाया हुआ है करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पीयर है। तो जो ये करंट एक्स तो बाद एक एक्स पॉइंट तो देखो गलवैनोमीटर च एंटर कर रहा है तो करंट अजे भी गलवैनोमीटर विचों आई जी ही फ्लो कर रहा है चाहे पूरे इस सैक्शन दे विचों करंट कितना फ्लो किया आई पर गलवैनोमीटर दे विच जो करंट गया वो आई जी। हुण आई जी की वैल्यू जो है आई दे कंपैरेटिवली बहुत घट है इसलिए गलवैनोमीटर की जो कोयल है और पॉइंटर है उसनों कोई भी नुकसान नहीं होता ये डैमेज होने तो बच जाते हैं। तो इस तरीके राही सैकेंड डिफिकल्टी जो सी वो भी ओवरकम होगी। हुण असीं तीसरे की गल करते हैं रेंज की। तो असीं देखिया कि जो पहला असीं गलवैनोमीटर नूं डायरैक्टली सर्किट च लगाया सीगा तो आपां नूं 0 to 1 मिली एम्पीयर तक की वैल्यू ही रीड करके दस रहा सीगा। पर हुण मॉडिफाइड गलवैनोमीटर नूं जदों असीं सर्किट च लगाया तो असीं 1 एम्पीयर तक का करंट जिहड़ा वो रीड कर पाए। तो इस तरीके राहीं असीं जो रेंज है वो 1000 टाइम इनक्रीज़ कर दी। तो इस तरीके राहीं गलवैनोमीटर के अंदर थोड़ी जी मॉडिफिकेशनस करन नाल असीं बहुत ही आसानी नाल सारियां डिफिकल्टीज जो पहला आ रही सी उन्होंने ओवरकम कर लिया है। तो हुण असीं नैक्सट इस कन्वर्जन नाल रिलेटिड ही कुछ फॉर्मूलाज करांगे तां जो अगर एग्जाम च कोई न्यूमेरिकल आए तो उन्होंने ईजीली सॉल्व किया जा सके। हुण सारे इत्थे जो डायग्राम सी जो दिखाया गया है वो ये सेम डायग्राम ही है जो असीं पिछे पढ़ के आए हाँ। इस डायग्राम की हेल्प नाल असीं फॉर्मूलाज लिखांगे। तो पहला फॉर्मूला है रेंज का एन इज इक्वल टू आई अपॉन आई जी। इत्थे आई की चीज़ है आई वो करंट है जो एमीटर दे विचों असीं पास कराया सीगा और एमीटर की स्केल तो असीं रीड कीता सीगा और आई जी किहड़ा करंट है जो सिंपल गलवैनोमीटर विचों करंट पास कर रहा सीगा फॉर फुल स्केल डिफ्लैक्शन। नैक्सट फॉर्मूला जो असीं शंट वास्ते लिखना चाहांगे तो शंट लई लिखण लई आपां देखो कंसैप्ट इत्थे लगावांगे कि दो रजिस्टेंसिस जुड़ियां हुई ने सर्किट के अंदर एक गलवैनोमीटर वाली जी और एक एस ये पैरेलल लगियां हुई ने। असीं करंट इलैक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 2 च पढ़िया सीगा कि दो रजिस्टेंसिस अगर पैरेलल लगियां होण ते उन्हां दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है इक्वल होंदी है। तो इसे कंसैप्ट में बस यूज़ करांगे। हुण देखो जी दे क्रॉस गलवैनोमीटर दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आई जी इंटू जी
और शंट ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ IS into S। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ G/S एंड IS/IG। देखो हम कंपोनेंट पे डिविडेंडो लगाएंगे तो अपने को रिलेशन बन जाएगा G+S/S, दिस इज इक्वल टू IS प्लस IG/IG। तो IS प्लस IG किहदे बराबर सीगा I दे बराबर। इस करके इत्थे असीं वैल्यू लगा सकते हैं I/IG, और I/IG किहदे बराबर आया सी उपर रेंज विच N। तो अपने को फॉर्मूला बन गया G+S इज इक्वल टू NS। इत्थों असीं S ਨੂੰ दूसरी तरफ लैके जावांगे तो अपने को वैल्यू बन जाएगी S कॉमन आएगा N-1 इज इक्वल टू G, और S की वैल्यू इत्थों निकल आएगी G/N-1। तो तीसरा फॉर्मूला जो तुसीं सामने देख रहे हो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो इस बारे असीं पहलां भी गल करिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिहड़ी है इत्थे कैलकुलेट किस तरह कीती सी GS/G+S। ते इत्थे हुण असीं S नूं नीचे लैके आवांगे तो फॉर्मूला बन जाएगा G/G+S/S। इस तरीके राही असीं जो उपर फॉर्मूला देखा सीगा कि G+S किहदे बराबर आया सीगा अपने को फॉर्मूले देखो G+S/S ये किहदे बराबर आया सीगा N दे। तो असीं वैल्यू इत्थे पुट कर दांगे ते बन जाएगा फॉर्मूला G/N। तो इस तरीके राही साडे कोल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक होर फॉर्मूला आ गया G/N। Now students, we will do the conversion of galvanometer into voltmeter। तो सानू इत्थे पता है कि जो गलवेनोमीटर साडे कोल अवेलेबल है उसकी कोयल की रेजिस्टेंस G है, और IG इस गलवेनोमीटर लिए फुल स्केल डिफ्लैक्शन करंट है। तो ओम्स लॉ लगा के असी इन्हां दोनों वैल्यूज़ नू अगर मल्टीप्लाई कर दीए तो गलवेनोमीटर की कोयल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो असी इत्थे मानते हैं कि IG की वैल्यू 1 मिली एम्पीयर है और कोयल की रेजिस्टेंस 50 ओम है। तो इस तरह नाल अगर इत्थे V कैलकुलेट करांगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 50 मिली वोल्ट। तो क्योंकि असी इत्थे गलवेनोमीटर तो वोल्टमीटर बना रहे हाँ तो ये सामने जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर असी मार्क लगावांगे 50 मिली वोल्ट। तो इत्थे सानू ये पता लग गया कि गलवेनोमीटर नू असी वोल्टेज मेजर करने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंटर के थ्रू सानू पता लग रहा है कि गलवेनोमीटर की कोयल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 50 मिली वोल्ट। तो हुण साडे सामने एक क्वेश्चन है कि असी इस गलवेनोमीटर नू किसी भी इलैक्ट्रिकल सर्किट दे विच डायरैक्टली वोल्टेज मेजर करने लिए यूज़ कर सकते हैं। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल स्टडी दिस इलैक्ट्रिकल सर्किट। तो इस इलैक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अपने कोल एक सैल है जिहदी EMF E है और एक रेजिस्टेंस R लगी हुई है। तो इस सैल दे विच सैल करके सर्किट के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह असी ओम्स लॉ लगा के R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है वो कैलकुलेट करांगे तो आएगा V इज इक्वल टू IR। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस नू मेजर करने लिए असी हुण इस सर्किट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहते हैं। तो इत्थे असी गलवेनोमीटर नू R के अक्रॉस पैरेलली जोड़ देवांगे। ये देखो नैक्सट सर्किट के अंदर असी गलवेनोमीटर नू R के अक्रॉस पैरेलल जोड़ दिता होया है। तो हुण सर्किट के अंदर जो करंट I चल रहा है वो इस पॉइंट पे आके ब्रांचिंग हो जाएगी। तो इस I का एक पार्ट IG गलवेनोमीटर वाली आर्म से निकल जाएगा और जो दूसरा पार्ट है I माइनस IG वो ऊपर रेजिस्टेंस R दे विचों दी पास हो जाएगा। तो असी करंट इलैक्ट्रिसिटी विच एक कंसैप्ट पढ़िया सीगा कि दो एलीमेंट्स किसी सर्किट के अंदर अगर पैरेलल लगे होंदे हैं तो उन्हां दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होंदी है इक्वल होंदी है। तो इसी कंसैप्ट में असी हुण यूज़ करन जा रहे हैं। तो सब तो पहला देखो गलवेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा IG इंटू G, क्योंकि G इत्थे गलवेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, और R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I माइनस IG इंटू R। तो इस सर्किट दे विच गलवेनोमीटर के थ्रू असी जो वोल्टेज मेजर करांगे सपोज उसनूं असी कह दिंदे आ V'। तो V' किहदे बराबर होएगा V' विल बी इक्वल टू IG इंटू G एंड विच इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू R। हुण असी V और V' नूं अगर कंपेयर करते हैं तो सानू साफ पता लग रहा है कि V' की वैल्यू V नालों घट है। तो ये क्लीयर इंडिकेट कर रहा है कि जो गलवेनोमीटर असी सर्किट च लगाया है वो इत्थे परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है इस इलैक्ट्रिकल सर्किट दे विच R दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नूं मेजर करने लई। तो इस तरीके राही जो फिजिक्स दे विच आपां पहलां भी गल करी सी, जो एरर आ जाती है तो उसनूं बहुत माइंड किया जाता है। तो हुण असीं इत्थे जावांगे
ਕਿ ਐਰਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਐਰਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ v ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ v ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ v ਡੈਸ਼ v ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ig ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਜਾਏ। तो अगर आई जी 0 हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ अपने को वैल्यू बचेगी i माइनस 0 इंटू आर, तो ये i इंटू आर हो जाएगी। तो एग्जैक्टली फिर v डैश जो है वो v के बराबर हो जाएगा। तो आई जी के 0 होने का मतलब की है कि जो गलवैनोमीटर की आर्म सी वो जो करंट है वो 0 फ्लो हो जाए। तो इस तरह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने लई सानू मिनिमम उसनू करंट जिहड़ा वो सप्लाई करना पैंदा है। तो हुण असी जो रिजल्ट विच एरर आ रहा सीगा उसनू मॉडिफाई करांगे। मॉडिफाई करन लई असीं गलवैनोमीटर दे विच कुछ चेंजिस लैके आवांगे। तो नैक्सट असीं इन्हां डिफिकल्टीज़ बारे जो गल कीती है कि एरर आ गई इंट्रोड्यूस करन लई गलवैनोमीटर नू मॉडिफाई करन जा रहे हैं। तो पिछले रिजल्ट में एनालाइज करके आपां नूं ही पता लग गया कि असीं गलवैनोमीटर दी रजिस्टेंस अगर इंक्रीज़ कर दईए, जो कि इत्थे असीं सर्किट 'च दिखाई है, किसी तरह नाल अगर असीं गलवैनोमीटर की रजिस्टेंस इंक्रीज कर दईए तो सर्किट के अंदर जो करंट आई जी फ्लो कर रहा सीगा ओहदी वैल्यू ऑटोमैटिकली रिड्यूस हो जाएगी। पर जो गलवैनोमीटर साडे कोल अवेलेबल है ओहदी जो रजिस्टेंस है वो असीं चेंज नहीं कर सकते, ओहदी रजिस्टेंस जी है। पर इस तरीके नाल देखो सर्किट के अंदर असीं एक सीरीज़ दे विच एक हाई रजिस्टेंस वायर इहदे नाल जोड़ दित्ती है। तो हुण ये जो पूरा ब्लॉक है जो डॉटेड करके दिखाया गया है, ये पूरे ब्लॉक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਵਾਂਗੇ। तो वोल्टमीटर जो है ਹੁਣ इस मॉडिफाइड गलवैनोमीटर ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। तो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ G plus S। तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ G plus S। और अगर इस मॉडिफाइड गलवैनोमीटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ R ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੈਰਲਲੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ G ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ S ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो इस तरह नाल इस आर्म की रजिस्टेंस बच जाती है और इस आर्म के जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू बहुत ही घट होएगी। सो टोटल करंट आई की वैल्यू का जो मेजर पार्ट है हुण आर के विचों फ्लो करेगा। इस तरीके नाल आर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होएगी वो अप्रोक्सीमेटली आई आर ही होएगी। पर गलवैनोमीटर के क्रॉस भी इस तरीके नाल असीं वोल्टेज चैक कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू जो होएगी आई जी इंटू जी प्लस एस। क्योंकि दोनों एलीमेंट्स पैरेलल लगे हुए हैं इसलिए गलवैनोमीटर तो जो असी वोल्टेज की वैल्यू हुण रीड करांगे वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई आर के बराबर होएगी। तो इस तरीके राही जो एरर रिजल्ट विच आ रही सी उस प्रॉब्लम नूं भी असी इत्थे ही सॉल्व कर लिया है। तो नैक्सट इहदे विच असी जो हुण नवां वोल्टमीटर बनाया है इहदी जस्ट कैलिब्रेशन करनी है। तो कैलिब्रेशन करन लई असी जो पॉइंटर है इहदे उपर मार्क लगावांगे आई जी इंटू जी प्लस एस। तो इत्थों सानू पता लग रहा है कि इस न्यू वोल्टमीटर नाल जो असी वोल्टेज रीड करांगे उसकी वैल्यू होएगी आई जी इंटू जी प्लस एस। सो जो ओल्ड गलवैनोमीटर सी उसनूं लगा के जो वोल्टेज की वैल्यू मिल रही सी वो कितनी सीगी आई जी इंटू जी। तो इस तरीके नाल असी रेंज नूं भी इंक्रीज कर दिता। तो दोनों डिफिकल्टीज नूं मॉडिफाइड गलवैनोमीटर दे नाल असी ओवरकम कर लिया है। तो नैक्सट असी इस फॉर्मूलाज करांगे। सब तो पहला फॉर्मूला है रेंज। रेंज एन इज इक्वल टू वी एन ओवर वी नॉट। इत्थे असी वी एन और वी नॉट की वैल्यू या वी ओ की वैल्यू पुट करांगे तो साडे कोल आएगा आई जी इंटू जी प्लस एस ओवर आई जी इंटू जी। आई जी कैंसिल हो जाएगा तो मिल बचेगा जी प्लस एस ओवर जी। तो सेकेंड फॉर्मूला इसे फॉर्मूले नूं कंटिन्यू हो जाता है कि जी प्लस एस इज इक्वल टू एन जी। तो इत्थों असी एस की वैल्यू निकाल पावांगे एन माइनस वन इंटू जी। तो थर्ड फॉर्मूला जो असी पहले ही कर चुके हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होएगी ये होएगी जी प्लस एस जिसनों असी एन इंटू जी के बराबर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके राही आर इक्विवेलेंट का सानू एक होर नवा फॉर्मूला मिल गया एन इंटू जी। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर राउंड फॉर द क्विक रिविजन ऑफ टुडेज टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1 is what is shunt? Shunt is a small resistance which is connected in parallel to the galvanometer. So next question, question number 2. What are the uses of shunt? Number 1, shunt protects the galvanometer from the strong currents. Number 2, shunt is used for converting a galvanometer into ammeter. And the number 3, shunt is used
for increasing the range of emitter. So these are 3 uses of shunt. Next question is, what is a galvanometer? Galvanometer is a very sensitive device which is used for the detection and measurement of very small electric currents. So these currents may be in microampere or milliampere. Next question is, what is ammeter and how is it used in electrical circuit? So answer is, ammeter is a low resistance galvanometer and it is connected in series to the electrical circuit. The next question is, what is a voltmeter and how is it used in a electric circuit? The voltmeter is a high resistance galvanometer. It is connected parallel to the circuit across the 2 points whose potential difference is to be measured. So next question is, what is the resistance of an ideal ammeter? So answer is 0. The next question is, what is the resistance of an ideal voltmeter? So its resistance is infinity. So that's all for today. We have done a very important topic, conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. So thank you so much and have a nice day.